سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ کیا اور برطانیہ کو اس میں شمولیت کی دعوت دی۔ آرمی چیف نے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات ہوئی ہے۔ اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جاری ترقیاتی منصوبے بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بیرونی پشت پناہی سے جاری دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا کوئی فرقہ، مذہب یا نسل نہیں ہوتی، ان کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے نوجوان ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آرمی چیف سے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں ان کی جانب سے یہ اظہار خیال کیا گیا ہے۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت کو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political goal, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including war terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to India's reckless action in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for the commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right of self-determination. ممبر پنجاب اسمبلی سارہ احمد نے پاک بھارت کشیدگی پر اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ یہ ایوان اس قرارداد کے ذریعے خطے میں پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس قرارداد میں کہا گیا، یہ ایوان پہلگام واقعے کے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر بھارتی حکومت کے جھوٹے الزامات کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی سفارتی تعلقات میں تناؤ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ بھی اس قرارداد میں کہا گیا۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور پاکستان پرامن ملک ہے جو ہمیشہ مسائل کے پرامن اور سفارتی حل کا خواہش مند رہا ہے، یہ بھی اس قرارداد میں کہا گیا، جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی سارہ احمد نے پاک بھارت کشیدگی پر اسمبلی میں جمع کرائی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ساتھ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ دنیا نیوز کی ٹیم مظفر آباد کے علاقے بیلا نورشاہ پہنچی، جس سے متعلق بھارت نے دہشت گرد کیمپس کا پروپیگنڈا کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیلا نورشاہ ایک پرامن علاقہ ہے جہاں نہ تو کوئی دہشت گرد ہے نہ ہی کوئی کیمپ۔ دنیا نیوز نے بھارتی جھوٹ کا پردہ بے نقاب کر دیا۔
पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुज़िश्ता कई रोज़ से कशीदगी जारी है। अब हम आपको लेके जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेला नूर शाह के मुकाम पे और आपको दिखाते हैं कि जो भारतीय मीडिया बात कर रहा है इसमें क्या कोई सच्चाई है, वहाँ के असल मनाजिर क्या हैं। आइए चलते हैं जी। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। मुजफ्फराबाद यहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हम यहाँ से बाय रोड LOC की जानिब जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे साथ मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ मुजफ्फराबाद से बाय रोड आपको LOC पे लेके जाएंगे। हम जी मुजफ्फराबाद से लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रवां दवा हैं। वहाँ क्या मनाज़र हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है, वहाँ के लोगों से भी जानेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। ये बेला नूर शाह और पीर जनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नज़र आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नज़र आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। बेला नूर शाह का वो मुकाम जिससे मुतल्लिक इंडियन मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या इस मुकाम पे टेररिस्ट कैंप हैं या यहाँ पर एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है और यहाँ पर लोग जो है अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आइए चलते हैं इस स्कूल की आपको सूरत हाल बताते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो जिस तरह इंडिया इस इलाके को डिस्क्राइब करता है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक ऐसा इलाका जिसको कहता है कि जी यहाँ पर दहशतगर्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या मुमकिन है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई दहशतगर्दी के कैंप चल रहे हों? क्या मुमकिन है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल हो, वहाँ क्या ये माहौल नजर आएगा? पाक फौज जो है LOC के ऊपर मौजूद है और आपका दिफा कर रही है, तो पाक फौज के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाक फौज के हवाले से हम ये कहेंगे कि पाक फौज हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान है और जहाँ पर पाक फौज का पसीना गिरेगा वहाँ पर अब हम अपना खून गिराएंगे। यहाँ के एक शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। अगर कोई ऐसा यहाँ पर कोई दहशतगर्द कैंप होता या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही होती और जिस तरह इंडियन मीडिया उसका प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत ने एक प्लान तैयार कर रखा है हमले का, तो फिर तो शायद यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी ना चल रही होती। मेरी उम्र 48 साल हो गई है, मैंने इन 48 सालों में यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। यहाँ जो तरबियत हो रही है वो अभी आपने देखी है, यहाँ बच्चों की तरबियत हो रही है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है और हम मुतमीन इसलिए अभी तक यहाँ पे मुतमीन है कि हमारी पाक फौज जो है वो हमारी इस सरहदों पे बिल्कुल चौकन्ना है। हमारे साथ कमिश्नर मुजफ्फराबाद गुफ्तार हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये इंतहाई पुरअमन इलाका है, यह मुजफ्फराबाद के करीब तरीन इलाका है। यहाँ सारी सिविल पॉपुलेशन रहती है। एक साइड पे ये सामने हमारे बॉयज़ मिडिल स्कूल बेला नूर शाह है, दूसरी साइड पे ये प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है और ये सिविल पॉपुलेशन भी है। ये खुद आप देख सकते हैं कि लोग चल फिर रहे हैं, प्राइवेट लाइफ गुजार रहे हैं, इंतहाई पुरअमन ज़िंदगी गुजर रही है। दिफाई मैदान के साथ साथ बयानिए की जंग में भी भारत को मुसलसल सुबकी का सामना है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने मुजफ्फराबाद के इलाके बेला नूर शाह में आकर देखा कि भारत का इस इलाके से मुतल्लिक ट्रेनिंग कैंप्स का प्रोपेगेंडा बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, बेला नूर शाह, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद आज एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। पाक फौज की जानिब से फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। एक्स इंडस मश्क के तहत अफार किए गए अलफतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्ती शामिल है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियतों की जाँच है। पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एक्स इंडस मश्क के तहत फायर किए गए फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल। ISPR का बताना है कि तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है।
पाकिस्तान आर्मी स्ट्रैटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी। ISPR का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। मिसाइल तजर्बा किसी भी जारियत को रोकने के लिए पाक फौज की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फतेह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने वालों की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने मुल्की सलामती और दिफा यकीनी बनाने के कौमी अज़म का इयादा किया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था तरबीती लॉन्च की कामयाबी से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर आजम ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए, भारत क्या करने जा रहा है, तहरीक इंसाफ के बाइकॉट पर वज़ीर दिफा क्या कहते हैं। हमारी नुमाइंदा हरीम जदून इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पाक भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या शवाहिद मिले हैं कि भारत इस मामले में मुलव्वस था, और दूसरा ये कि क्या हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको जवाब दे सकें? जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग हैं अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। अभी जारियत का भी सोच रहे हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। उसके लिए फोरम मौजूद है जहाँ पे हम जाके उसको एहतजाज कर सकते हैं। कल जो इन कैमरा इजलास हुआ है DGIS पे आ रहा था, उसमें जो PTI ने बाइकआउट किया है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि इस पे सब जमातों को? मेरी जो अक्ल है, मैं कोई ज़्यादा अक्लमंद आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी अक्ल में जो आता है कि आपकी अपने मुल्क के साथ गैर मशरूत जो है ना लॉयल्टी होनी चाहिए। मेरा लीडर अंदर था, हम फिर भी इनसे मुज़ाकरात करते थे। नवाज शरीफ अंदर था, उसकी बेटी कैद थी, उसके रिश्तेदार कैद थे, बीवी बीमार थी, शहबाज शरीफ कैद था, हम फिर भी इनसे मुज़ाकरात करते। सिर्फ़ और सिर्फ जो है कौम को ये पैगाम दें कि हम लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हम मुतहद हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुजर जाएगा, अल्लाह खैर खैरियत रखे, अल्लाह फतह दे हमें, उसके बाद फिर लड़ लेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई है। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का बायस बनी। माली साल 2025 की दूसरी तिमाही में GDP नमो 1.7% रही। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने माली साल 2025 के GDP नमो 2.5 से 3.5% रहने की पेशगोई की। मार्च में करंट अकाउंट में $1.2 अरब सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का एलामिया में ये बताया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीख़ी गहरे बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ तिजारत, तवानाई, सरहदी इंतज़ाम और इलाकाई राब्तों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत ने कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने कहा दोनों ममालिक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आज़मूदा दोस्ती का इरादा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ये कहते हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करना जंग के मुतरादिफ होगा। अगर भारत हमला करता है तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान
भैया आवाज हो के मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स एक ऐसा तकड़ा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ के हम लोग रखें, तब बात बनेगी जनाब।